اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لیے اور ظلم نہ کرو. خدا کا قرآن مردوں کے لیے. سبزی ترکاری زندوں کے لیے، گوشت، قورمے، متنجن، مرغی، تمام کھانا پینا، سکوٹر، ریل، موٹر، ہوائی جہاز، کوٹھی، بنگلہ، تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لیے. اور کتنی بڑی بے انصافی ہے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. السلام علیکم دوستو، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل ایس ٹی ملتانی ریئیکٹ پر. آج قاری حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے حضرت ایوب کی درد بھری کہانی. بہت یوزفل بیان ہے. چلیے دوستو سنتے ہیں مل کے اس بیان کو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں حضور کا میزبان. اللہ اللہ. نیچے کی منزل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے آرام کروں گا، اوپر تم چلے جاؤ. 2 منزلہ مکان تھا یوں ہی. اللہ حضور نے فرمایا تم اوپر. عرض بھی کیا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے رہیں گے. فرمایا نہ، ملنے جلنے والے آئیں گے، بیوی بچوں کو اوپر رکھ. حکم دے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی نے ساری رات کبھی نیند نہیں کی، کونے میں لگے کھڑے رہتے تھے. نیچے جائیں حکم کے خلاف ورزی ہے، اوپر سو جائیں، نیچے نبی اوپر ہم. ساری رات جاگتے، بے ادبی سے ڈر کے مارے کونے میں لگے کھڑے رہتے. ایک دن پانی بکھر گیا چھت پہ، معمولی سی چھت تھی. اب بتاؤ آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے کہ اگر پانی چھت پہ بکھر جائے، ڈل جائے، تو جو رضائی تھی نا میاں بیوی کے اوڑھنے کی، اس رضائی کو پانی پہ ڈال کر اسے جذب کیا. نیچے اگر حضور کے اوپر چھت کا پانی ٹپک گیا تو ہم مارے جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے، اپنی رضائی خراب کر دی. حضور تک پانی نہ پہنچ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، نیند نہ اکھڑ جائے، پریشانی نہ ہو جائے. جامع ترمذی، سنو میری ایک بات، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یوں فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو، توجہ کریں سب، ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن ہر امتی کا اعمال نامہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. خود سوچو، ایمانداری سے سوچو، ہمارے یہ عمل جب حضور کے سامنے جاتے ہوں گے راضی ہوتے ہوں گے؟ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہم سے؟ ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے نامہ اعمال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں. چلو مسند کی روایت سے ہی شرم کرنی چاہیے، ہمیں غیرت کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا پروگرام ہے، کیا ہمارا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں اور کدھر کو چل دیے. وہ ایک مرتبہ کی بات بتایا کرے، ساتھی کے 2 بڈھے تھے ہندوستان سے آئے ہوئے بیچارے، کراچی جانا تھا، اسٹیشن ملتان پہ گئے، گاڑی میں چڑھ کے اوپر کی سیٹوں میں بیٹھ گئے، جو لیٹنے سامان کے ہوگا نا اوپر بیٹھ گئے. جا رہے ہیں کراچی، گاڑی جا رہی ہے لاہور. خوب سفر کیا، خوب سفر کیا. جب رائیونڈ آیا نا، نیچے والوں سے پوچھا تم کہاں جاؤ گے بھائی؟ کہ لاہور. ایک بڈھا کہنے لگا دیکھو اللہ کی شان، اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، نیچے والے لاہور جا رہے ہیں. نیچے والے سارے لاہور جا رہے ہیں کہ اوپر والے کراچی جا رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھو. کچھ تو اپنی سمت متعین کرو، کچھ تو اپنے نام اعمال کو چیک کرو. کچھ تو آدمی رات میں دن میں یہ سوچے کہ میرا رخ کدھر کو ہے، کدھر جا رہا ہوں، کیا میرا دفتر تیار ہو رہا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں بلکہ یوں فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جانے کے لیے کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا میدان جہاد میں. لگا جی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، ساتھ لے کے جانا. اور صحابہ
से कहा कि अगर मेरी रास्ते में मौत आ जाए, मेरी मैयत को फेंकना नहीं, मैदान जिहाद में जाके डाल देना, शायद किसी मुजाहिद की सवारी का पैर मुझ पर आ जाए, क़यामत का दिन होगा, खुदा पूछेगा अबू अय्यूब दुनिया से क्या लाया? अर्ज करूंगा इलाही तेरे महबूब का मेजबान बना था, पर मैं शहीद तो ना हो सका, पर तेरे मुजाहिद की एक सवारी का पैर मुझ पर रखा गया था, ये निशानी लेकर आया हूं। इन लोगों के दिलों में यकीन और ईमान समाया हुआ था, उसी पर वो लोग कामयाब थे। और जिंदगी जो थी इन्होंने गिन गिन करके गुजारी, सांस गिन गिन करके लिया करते थे। इसी को कुरान करीम का ताबी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। माल भी जान भी अल्लाह के नाम पर जब आदमी खपाता है और यकीन करके खपाता है और पुख्ता यकीन जब दिल में बसा लेता है तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू उसको दुनियाई में इस किस्म की खुशखबरियां इत्मीनान क़ल्ब अता हो जाता है जिसकी इंतहा नहीं रहती। बेशुमार अल्लाह वालों को हमने सुना और देखा जिनका आखिरी वक्त अजीब तरीके से अल्लाह पाक लाया। अब देखो ना, किसी के बस की बात तो नहीं कि एक आदमी अस्पतालों में टिक्के गोली, चीरा पाड़ी, ऑपरेशन, खंचातानी, रुपया खर्च, बीवी बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और एक आदमी की मौत इस तरीके से आ जाए कि सर सजदे में रखा, उधर आवाज आई सर तेरा है दर मेरा है, झोली तेरी है अता मेरी है, आजा सजदा ही करता हुआ आजा, तेरी जुबान हो सुभान रब्बियल आला हो, फौरन मेरे पास आजा। अभी मैं इन अपने साथियों से ये बावलपुर से तशरीफ लाते हैं दोस्त चौधरी सरफराज खान साहब, इनसे जिक्र कर रहा था कि एक आदमी ने अजान दी और ला इलाहा इल्लल्लाह का लाउड स्पीकर में अजान दी ठीक ठाक, और जमीन पे बैठा और जान निकल गई। यानी अपनी कब्र से उठेगा, कोई कुछ भौंकता हुआ उठेगा, वो अल्लाह वाला अजान देता हुआ उठेगा। तो अब इन्होंने बुला रखी ना रस्म कि कब्र पे अजान दिया करो। जब हम पूछते हैं कि भाई ये कब्र पे अजान क्यों, अखी वो जड़ा मुर्दा है ना मैयत, अजान सुन के फौरन हो लोटा सामदा है, वुजू करता है, मुसल्ला बिछाता है। हम उनसे कहते हैं कि जिसने सारी उम्र में अजान सुनकर कलमा मुंह से नहीं निकला, मस्जिद की तरफ नहीं गया, टेप बंद नहीं की गाने की, दुकान बंद नहीं की, सारी उम्र तो नमाज को लगाए उसने रगड़े, और अब लाखों मन मिट्टी बीच में है, ऊपर मुल्ला खड़ा हुआ अजान दे रहा है, मलक अब ये जामे मस्जिद में जाएगा उठ के, अब तो जरूर उठ के जाएगा। ये कैसे ये तमाम चीजें निकाली है। हाँ, जो हदीस पाक में है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हदीस में आता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नकीरैन आते हैं और उसे जिंदा कर लेते हैं तो उसे असर की नमाज का तंग वक्त नजर आता है, असर की नमाज का थोड़ा वक्त नजर आता है, तो वो कहता है दाऊनी, छोड़ दो मुझे, मैं पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे बात करूंगा, पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे बात करूंगा। फरिश्ते कहते हैं चलो हो गई सारी बात, बस इतनी बात कहलवाना चाहते थे। उसको फिक्र होता हाय 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 नमाज गई, सूरज डूबने को हो रहा है, देर हो गई, देर हो गई, तोबा तोबा मैं सो गया था, नमाज को देर हो गई। फरिश्ते कहते हैं जा सब तेरा हिसाब किताब सब हो चुका है। मगर ये वही तो करेगा ना जिसने नमाज कभी छोड़ी ही नहीं। और आज हम दुकान से अगर चल भी पड़े नमाज के लिए, रास्ते में मिल गया जिससे 10 रुपए लेने हैं, होगी गप्पे शुरू, यार तेरे मकान पे गया था, तुझे आवाज दी थी, घंटी खड़काई थी, फिर बच्ची निकली थी, फिर लंबा किस्सा जो शुरू किया ना, लोगों नमाज, दुकान भी गई और नमाज भी गई। दीन इस्लाम हक है, कुरान बर हक है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान बर हक है। इसलिए अपनी जिंदगी में गौर करो,
बिदात के पीछे ना लगो, शिरक के पीछे ना लगो, कुफ्र और निफाक के पीछे ना लगो। अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूं, ये कुरान हिदायत का घर है, कलाम इलाही है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान सीखो। इसमें जो बात आ जाए वो सही है, जो इसमें ना आए सारा जहान कहता रहे वो बात सही नहीं, गलत है। मां के पेट से लेकर कब्र की लाहत तक के सारे अहकाम कुरान करीम ने बयान फरमाए। बल्कि कुरान करीम ने मां के पेट से बाहर आने की बात नहीं, अंदरूने पेट के हालात भी बताए। बचपन की जिंदगी, शबाब और जवानी, बुढ़ेपा, शादी, तिजारत करना, हुकूमत चलाना, जिम्मेदारा करना, कारोबार करना, किसी से को कर्ज देना, कर्जा वसूल करना, सदका खैरात देना, हमदर्दी करना, निकाह तलाक करना, सारे के सारे अहकाम कुरान करीम में है। लेकिन वह कौम तेरी किस्मत, इतनी अजीम शान किताब जो ताज़ीरात इलाही हो, अर्शे अजीम से आई हो, जिब्रील अमीन लाए हो, सैयदुल मुरसलीन हजरत मुहम्मदुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नादिल की गई हो, तुमने उस किताब को मुर्दों के लिए रख छोड़ा कि जब कोई मरेगा फिर चावल पकाएंगे, फिर इसे पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि तमाम चीजें जिंदों के लिए, और जुल्म ना करो, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, गोश्त, कौरमे, मुतंजन, मुर्गी, तमाम खाना पीना, स्कूटर, रेल, मोटर, हवाई जहाज, कोठी, बंगला, तमाम का तमाम तख्तो ताज जिंदों के लिए। और कितनी बड़ी बेइंसाफी है, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। जब तक कोई मरेगा नहीं, कुरान मजीद याद नहीं आएगा, घर में उसका तिलावत करना सवाब नहीं, उसका पढ़ना कारे सवाब नहीं, उस पर अमल करना जरिया निजात नहीं, उसको आंखों से देखना बरकत वाली बात नहीं। और लोगों, वो लोग भी इस दुनिया में आए जिन्होंने सारी उम्र अपना और तमाम मशगला तरक करके तमाम की तमाम जिंदगी कुरान करीम, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में गुजार दी। ये जितने बड़े बड़े बुजुर्ग आए और गुजरे हैं, कमाई की है। एक अल्लाह वाले का बयान है, बुजुर्ग है, फरमाते हैं मैं मदीने पाक में रहता था, तहज्जुद की नमाज के लिए उठता था। एक दिन जो अल्लाह वाला उठा है तहज्जुद के लिए और बाहर निकला, 5 मिनट के बाद घर में आके बैठ के रोने लगा। बीवी बच्चों ने पूछा क्या बात है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, किसी के मरने की खबर मिली? अल्लाह वाला रो रो के कहने लगा खबर तो नहीं मिली, अंदेशा हो गया। पूछा क्या? कहने लगे जब भी सारी जिंदगी में तहज्जुद के लिए उठा हूं, लोग तहज्जुद पढ़ा करते थे, इमाम मालिक मदीने की गलियों में झाड़ू दिया करता था। आज बाहर निकला हूं, किसी गली में नजर नहीं आया। अभी रो ही रहा था, मस्जिद नबवी के ऊपर छत पे खड़े होकर किसी ने ऐलान किया, ओ मदीने वालों, इमाम मालिक चल बसा है। मेहनत कर करके, खिदमत कर करके लोग जन्नती बने। आज लोग फूंक मार के जन्नत में जाना चाहते हैं। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना बड़ा मुहद्दिस, सहाबा का शागिर्द, सहाबा को देखने वाला इमाम मालिक, दबदबा इतना, रोब इतना। मक्के के गवर्नर ने मदीने के गवर्नर को खत लिखा,
مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درس میں داخل کراؤ. حدیث شریف جو پڑھاتا امام مالک اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو. تو مدینے کا گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں، تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کے دے دو، اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درس میں آنا، ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے. مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبوی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکے کے گورنر کا، حدیث آپ سے یاد کرنا چاہتا ہے. فرمایا بہت اچھا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، جو آگے پڑھنے والے 50,000 لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا. تم جیسا ہوتا کر کے فوراً بھاگ جاتا، لو جی یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے، ڈکٹیٹرشپ چلا رکھی ہے. ارے نہیں، یہ علاج کیا کرتے تھے. غریبوں کے بیٹے آگے بیٹھے، گورنر کے بیٹے کو جوتیوں میں بٹھایا. اور 1-2 دن نہیں، 2 سال تک مکے کے گورنر کا بیٹھا جوتیوں میں بیٹھ کر امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا. 2 سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی، فرمایا تم گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں. فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ جایا کر. روب اتنا، دبدبا اتنا، شان اتنی، اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی، ساری عمر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا. لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے. فرمایا ڈرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آمنہ کے در یتیم کی تلی لگی ہو. ادب سیکھو، ادب. یہ معمولی سے ادب تو آپ لوگ کر نہیں سکتے، دوسروں کو بے ادب بتاتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں، آؤ ادب کی بات میں تمہیں بتاؤں، 3 میل کے ایریے میں، 3 میل کے اندر مدینے شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پیشاب اور پخانہ نہیں کیا. اور عشق کی بات سنو، ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکلے، ڈر کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے، یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں. جھاڑو دی ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں. اتنی شان کا مالک، لکھوں کھا حدیثوں کا حافظ امام مالک، جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد. اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا. تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں نہ جانے کب آئیں گی. جو ڈھول پیٹے، گھنگرو کھڑکائیں، ناچتے پھریں وہ عاشق ہیں، اور جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر 15 سال تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائیں وہ عاشق نہیں. نہ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے، حضور کی پسند کے بغیر مسلے پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادب کر کے دکھلایا.
शेखुल इस्लाम शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 बरस तक गुंबद खिदरा की जालियों की छांव में बैठकर पैगंबर की हदीस पाक पढ़ाई। अल्लाहु अकबर, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ये नहीं फरमाया करते थे कि काला साहिबुर रौजा, बल्कि यूं फरमाया करते थे काला साहिबुर रौजा। और लोगों, इस गुंबद खिदरा के मक्की का ये फरमान है, और तनख्वाह लेकर के नहीं। अब तो लोग मदीने की तरफ भी जाते हैं तो पैसों के लिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं, हम 11 आदमी घर के थे, एक चटाक मसूर की दाल, मोहरी की दाल पानी में उबाल कर वो पानी पी कर गुजारा कर लिया करते थे। फरमाते हैं मदीने पाक की गलियों में से सब्जियों तरकारियों के छिलके में चुन लाता था, उठा लाता था, शाम को पानी में धोकर चाकू से काट कर मुंह में चबा कर छिलके निगल जाता था। उसके बाद पानी पीकर रियाजुल जन्ना में खड़ा होकर सारी रात मौलाना हुसैन अहमद मदनी कुरान करीम पढ़ा करता था। अंदाजा लगा किस शान के लोग थे, किन अजमतों के लोग थे। आज तो चक्कर में लगता है तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो कुरान करीम ने हर चीज बयान फरमाई। ये जो हमारी नजर न्याज है, नजर मानते हैं, मन्नत मानते हैं, कुरान करीम ने इसको भी बयान फरमाया। छोड़ा तो कुछ भी नहीं ना। बच्चा बीमार हो गया, या अल्लाह इसे शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, खैर अता फरमा, तेरे नाम पे बकरा खैरात करूंगी, छतरा खैरात करूंगी। कुछ रुपए बोल दिए, गल्ला बोल दिया, को कपड़ा बोल दिया कि मैं ये खैरात करूंगी तेरे नाम पे। ये है नजर। अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का, अल्लाह का तो आजकल कम लोग नजर मानते कि वो अल्लाह मियां तो बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, पेंशन पे गया हुआ है। अब तो और बतेरे आ गए ना। फलाने पीर दी जाते झंडी लोहे सा एडी बड़ी चोटी रख देने ना बाल दे सिर दे उत्ते, और फलानी जा जाके चोटी लोहे सा। किरार दा पुत्र अगर चोटी रख लवे तो किरार है, ते मुसलमान दा पुत्र चोटी रखी फिरे तो उनके मुसलमान होने में कोई फर्क नहीं आता। कुरान करीम ने इस चीज को वजाहत से फरमा दिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा है। इस क़ालत इम्राअतु इम्रान, इस क़ालत इम्राअतु इम्रान, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, इमरान की घरवाली ने नदर मानी, न्याज मानी, मनहोती मन्नी। रब्बी इन्नी नदरतु लक। ये कुरान करीम मैंने नहीं बनाया, किसी देवबंदी ने नहीं बनाया, किसी अहले हदीस ने नहीं बनाया, किसी और मजहब वाले ने नहीं बनाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं इस क़ालत इम्राअतु इम्रान, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने नदर मानी, न्याज मानी। रब्बी इन्नी नदरतु लक, ऐ मेरे परवरदिगार, और जमीन और आसमान
नजर मानती हूँ, तेरी मनहोती मानती हूँ। यहाँ तो अगर तो खैरात मांगने भी आए ना, जब तक शिरक ना कर ले उसको टेढ़ी नहीं मिलती। अगर नजरे अल्लाह दे ते न्याज़े हुसैन दियो। मैंने शहीद करबला के उन्वान को जिक्र करते हुए बताया था कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में सुहादा आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल्लाह पाक पूछेगा तू अपना कातिल बता कौन है। तो हजरत हुसैन फरमाएंगे साइया कातिल वत दसे सा और जेड़े मेरी न्याज खा खा के दुम्बे थी गए, पहले इन्हां को तो सड़वा। सारी उम्र थी गई है न्याज खाने खाने, कातिल मेरे किठाई नहीं मैं मैं उन्हें कुछ जानदा कि तू भी जानदा, पहले इन्हां दा मरना कढ। फरमाया रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ओ मेरे परवरदिगार मैंने तेरी नजर मान ली, मैंने तेरी न्याज मान ली। माफी बतनी मुहर्ररा, जो कुछ मेरे पेट में है मैं आजाद कर दूंगी, तेरे नाम पे वक़्फ़ कर दूंगी, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी। फतक़ब्बल मिन्नी, मरियम के वालिदा को बड़ा फिक्र है, मैं 1000 नजर मानूं, मैं 1000 न्याज पेश करूं, अगर कबूल वो न करे तो मैं क्या कर सकती हूं। नजर भी उसकी मानी, न्याज भी उसकी मानी, और फरमाती है फतक़ब्बल मिन्नी, कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो मैंने मुंह से लफ्ज कहा है तेरे सिवा कौन जानने वाला है, और जो मेरे कल्ब और जिगर में लगी हुई है, दिल में मेरी नीयत है, इरादा हुआ है, उसे भी तेरे सिवा कोई नहीं जानता। बेशक बेशक, अल्लाह अल्लाहु अकबर। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने, इमरान की घरवाली ने नजर माननी, पेट हमल से थी, पेट से थी, औलाद थी नहीं। या अल्लाह तू मुझे औलाद दे, ये जो कुछ मुझे मिलेगा ऐ मेरे रब तेरे नाम पे वक़्फ़ कर दूंगी। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी जो चीज पेट में थी वो तो नजर अल्लाह के नाम पे मांग दी। इरादा ये है कि तेरा घर बैतुल मुक़द्दस है, वहां छोड़ दूंगी, झाड़ू दिया करेगा, तेरे घर की सफाई किया करेगा, तेरे घर का खिदमत गुजार बना दूंगी। रब मेरे औलाद मुझे अता फरमा, मैं अपने बेटे को तेरे घर में वक़्फ़ कर दूंगी, झाड़ू वो देगा, कब्र मेरी ठंडी हो जाएगी। लेकिन जब पैदा हुई तो लड़की पैदा हो गई। हजरत मरियम की वालिदा का ख्याल ये था कि लड़का देगा अल्लाह पाक, मैं बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी। लड़की पैदा हो गई, अब पछता रही है कि लड़की बैतुल मुक़द्दस में क्या करेगी, इसका क्या काम है बैतुल मुक़द्दस में बच्ची का। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने फरमाया अफसोस ना कर। अफसोस कर रही है मरियम की वालिदा, अब करूं क्या, ये तो लड़की है, मैंने लड़का मांगा था और इरादा भी यही था कि बैतुल मुक़द्दस में वक़्फ़ कर दूंगी, इस लड़की का वहां क्या बनेगा। अफसोस कर रही है अपनी नजर का, क्या करूं। एक ये लोग नजर मानते हैं, एक हम लोग मानना करते हैं नजर। एक बंदा खजी लावन वास्ते चढ़ा, उत्ते चढ़ा खड़ाई, वो जी रस्सी होंगी है कमंद जी वो लैके उत्ते चढ़दा वो टूट गई। खजी बड़ी उच्ची, हुण किवें लवे,
चल्लू जो नजर मारी तो जहन्नुम नजर आया, इतना दूर फासला, मगर ऐसा की मिला। दुआ मंगी, या अल्लाह सही सालिम तंदुरुस्त जब मैं अल्लाह बन जा तो 100 रुपया तेरे नाम ते खैरात करा। थोड़ा जा हेठ आया कि 90 देसा, थोड़ा जा होर थल्ले आया कि 80 देसा, थोड़ा जा होर थल्ले आया कि 50 देसा। तल्लू उतर के आखिर लगा नहीं भी देंदा, मैं आप लथा मैं को तू लाया कोई। असानी तो नजरां दा भी हाल है, मगर मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा को बड़ा अफसोस हो रहा, इलाही अब क्या करूं। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत। ये तो लड़की है, ये वहां क्या करेगी, क्या काम है इसका वहां, अफसोस में बैठी है। आवाज आई मरियम की वालदा, लड़की तो मैंने बनाई ना, तुझे क्या मालूम है ये वो लड़की है जिस पे हजारों मर्द कुर्बान कर दिया जाए। मैं अपनी यकताई, मैं अपनी वहदानियत, मैं अपनी तौहीद, मैं अपना वहदहू ला शरीक होना, मैं अपना बेमिसाल होना इस बच्ची से और इस बच्ची के पेट से बच्चा पैदा करके तू अफसोस कर रही है, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं अपनी कुदरत का लोगों को तमाशा दिखाना चाहता हूं। वलैसा ज़करु कल उन्सा, तुझे क्या मालूम है हजारों मर्दों से बेहतर है ये एक लड़की। अभी तो अल्लाह की अपनी पसंद है, किसी की लड़की पसंद, किसी का लड़का ही पसंद नहीं। हजारों धक्के खाते फिरते हैं, कुफर कर करके मर रहे हैं, शिर्क कर करके मर रहे हैं, कत्ल कर करके मर रहे हैं, जुल्म कर करके मर रहे हैं, दूसरों का हक खा खा के मर रहे हैं, सता के कौम को लोगों को मर रही हैं। ऐसे भी तो लोग हैं। बाज़ आदमी ऐसा मरता है कि खुदा के फरिश्ते रोते हैं, इलाही वो तेरा नाम लेने वाला कहां चला गया। और बाज़ ऐसा मरता है कि जमीन भी कहती या अल्लाह तेरा शुक्र है उस मनहूस के कदमों से मुझे पाक कर दिया। जानी, बदमाश, हरामखोर, जमीन भी पनाह पुकारती है। जमीन के जिस टुकड़े पे अमरे मुबाह की तरह बदमाशी लोग करते हैं, खुदा की कसम कुरान कहता है बदकारी से जमीन कांपती है। और हमारे माशरे में बुराई कोई नहीं, बिगड़ता ही कुछ नहीं। कौन पूछने वाला है। कुरान करीम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, सुनो जो अल्लाह चीज कबूल कर ले, फरमाया वालदा ए मरियम की अम्मा, जब ये मेरे नजर कर दी लड़की, समझो जरा, जब मेरे नजर कर दी, मेरे नाम की ये न्याज है और नजर है, अब नाम रखने का भी तुझे इख्तियार नहीं, मैं नाम रखूंगा। खुदा कहता मैं नाम रखूंगा। फरमाया व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी अऊज़ु बिका, इसको मेरी पनाह में दे, नाम भी मैं रखता हूं, पनाह में भी मेरी हो। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी अऊज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया मेरी पनाह में दे दे, इसकी औलाद को भी मेरी पनाह में दे दे। इरशाद गिरामी है मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही फौरन रोता है। जब बच्चा पैदा होता है, औरतों से पूछ लेना तुम्हें क्या पता, तुम तो बाहर बैठ कर पड़े रहते हो
किसी के घर में भी पैदा हो, पर मुसलमान के घरों का तो शैतान को पता है ना, कभी अजान कान में कहेंगे, एक कान में तकबीर कहेंगे, बच्चे के दिलो दिमाग पे अल्लाहु अकबर की सना बिठाएंगे, अल्लाह की अजमत बिठाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा कान में लगाकर बच्चे के कान में तौहीद का पैगाम पहुंचाएंगे, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी खत्म नबूवत का पैगाम बच्चे के दिल में बिठाएंगे। शैतान कहता है अजान कहने वाला तो जब आएगा पहले मैं अपना नंबर लगाऊंगा, तो वो बच्चे के दिल पर उंगली मारता है असर अंदाज होने के लिए, दिल पर असर डालने के लिए, तो बच्चा रोता है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान की इस उंगली से दो आदमी बचे, एक मैं और एक ईसा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको वो उंगली मारता है ताकि अजान होने से पहले मैं अपना जहर डाल दूं, अपना असर डाल दूं। और अभी आजकल तो हो भी ऐसा ही रहा है, अजान का असर नहीं, तकबीर का असर नहीं, शैतान की वो उंगली जो है वो आदमी बुढ़ा हो जाता है मगर वो उंगली छोड़ता ही नहीं, सारी उम्र गुनाहों में बर्बाद। हालांकि मजजूब कहता कि सब के सब है राह रवे कुए फना, सबके सब है राह रवे कुए फना, बह रही है हर तरफ जुए फना, हर तरफ बर्बादी और फना का मकाम दार सारा है। इसी को कहता कि सबके सब है राह रवे कुए फना, बह रही है हर तरफ जुए फना, आती है हर चीज से बूए फना, कौन बाकी रहेगा? हर तरफ से फना की बर्बादी है, ना ये बिल्डिंग रहेंगी, ना ये इमारत रहेंगी, ना ये बंगले रहेंगे, ना ये तख्तो ताज रहेंगे, ना ये आसमान रहेगा, ना ये पहाड़, ना ये जमीन, ना ये समंदर, ना ये दरिया, ना ये बागो बहार, कोई शय नहीं रहेगी, तमाम चीजों को फना आ जाएगी। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की पनाह में दे दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया इसका नाम भी मैं रखता हूं, व इन्नी उईज़ुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, कि शैतान के रजम से, शैतान के असर से इस लड़की को और इसके बेटे को मैं अल्लाह की पनाह में देती। चुनाचे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की ये नजर अल्लाह ने कबूल फरमाई। आगे है फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया। वालिदा मरियम की नजर अल्लाह ने कबूल कर ली। इसलिए मैंने अर्ज किया कि अब ये जो दिन आ रहे हैं ना, फग्गड़ चैतरदे, ये नजर न्याज के दिन है। अब फिरेंगे ना वो सोटियों पे बोछल लटका के, झुमर मरेंदे ते काफले बड़ेंदे ते नाचियां ते उठे, आखे आओ फलानी जाते, आओ फलानी जाते, आओ फलानी जाते। इसलिए कुरान करीम ने साफ साफ फरमा दिया व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी अऊज़ुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह का कुरान कितना प्यारा, पाक कलाम, अल्लाह का कलाम, जिब्रील अमीन का लाया हुआ कलाम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी उम्र मुबारक का तिलावत किया हुआ कलाम। सहाबा इकराम ने पढ़ा, आइम्मा ने पढ़ा, कुतुबों ने पढ़ा, अब्दालों ने पढ़ा, औलिया कराम ने पढ़ा, अब भी नेक लोग गरीब पढ़ते हैं। अरे कितनी बरकत वाली किताब है जिसमें यह मौजूद है कि नजर अल्लाह की, न्याज अल्लाह की। अब बच्ची थी, घर में पलती रही, सियानी हो गई। मेरे तेरे जैसे होते तो हेरा फेरी कर लेते ना। मैंने तो नजर माननी थी कि लड़का होगा या तो लड़की होगी, लड़की वहां क्या करेगी, मैं तो नहीं भेजती, और लड़का होगा या फिर देखी जाएगी। और नहीं कोई मौलाना ही मसला बता देता, इतने इसके बदले में पैसे दे आ,
बड़ा जल्दी मसला बदलता है। मैं कहता हूं आज खाने की चीज मिलावट के बगैर नहीं, पीने की चीज मिलावट के बगैर नहीं, पहनने की चीज मिलावट के बगैर नहीं, दवा मिलावट के बगैर नहीं। और तुम्हें क्या मालूम है दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों ने मिलावट कर दी। कम तोलने वाला तुम्हें मालूम हो जाता है, कम बोलने वाला तुम्हें मालूम हो जाता है, लेकिन जो दीन में मिलावट करता है वो मोहब्बत के रंग में करता है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। वो रंग दूसरा पेश करता है। वालिदा मरियम ने बच्ची सियानी हो गई, बैतुल मुकद्दस, अल्लाहु अकबर, वो बैतुल मुकद्दस जो आज यहूदियों के कब्जे में है। क़िबला अव्वल 500 से ज्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं, 500। याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र वहां है, इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र वहां है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र वहां है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र वहां है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र वहां है, ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र वहां है। अल्लाह जाने 500 से ज्यादा जलीलुल कद्र पैगंबरों की तमाम की कब्रें बैतुल मुक़द्दस में है। आज मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पे, यूशा अलैहिस्सलाम की कब्र पे, सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र पे, हूद अलैहिस्सलाम की कब्र पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पे इसराइली टैंक दंदनाते फिरते हैं। क्या बात। पूरी दुनिया का मुसलमान डूब के नहीं मर जाता, शर्म नहीं आती। मकान बनाने में लगे हुए हैं हम सारे, बंगले बनाने में लगे हुए हैं, मुरब्बे बनाने में लगे हुए हैं, एक शादी के बजाय दूसरी शादी के चक्कर में पड़े हुए हैं। और तुम्हें क्या मालूम है कि बैतुल मुक़द्दस की कितनी बेहुरमती हो गई। काश आज वो लोग जिंदा होते, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारे गज़वात में, सारे जिहादों में शरीक हुए। लैलतुल अक़बा की रात में मक्के पाक में आकर बैत की मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथ पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक 70 साल की उम्र है, बदर में शरीक हुए, बड़ा जख्म आया, ओहद में शरीक हुए, बड़ा जख्म आया, हुनैन में शरीक हुए, बड़े बड़े जंगों में शरीक हुए। 70 साल की उम्र हो गई, मदीने पाक में फिर ऐलान हुआ, इंफिरू खिफाफन व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। 70 साल की उम्र है सहाबी की। घर वालों को कहने लगा मेरा सामान तैयार करो, जिहाद में जाऊंगा। बेटियां, बेटे, नूहें, बहुएं, घरवाली, बहन, बच्चे सारे इकट्ठे होके आए और कहने लगे अबू तलहा, बतेरे जंग किए, बतेरे गज़वात में शरीक हुए हो, हर जिहाद में शरीक हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान मुबारक की हिफाजत किया करता था। अंदाजा लगा ये हाथ कमा कर तेरा बच्चों के लिए लाएगा, बीवी के लिए लाएगा। खुदा की कसम अबू तलहा का हाथ हुजूर की तरफ आते हुए तीर जलते जलते छलनी हो गया था। ओहद में सीने पे इतने तीर खाए और बार बार कहता था अबू तलहा, काली कमली वाले सर मुबारक नीचे रखो, मैं छलनी हो जाऊं, तेरी जान बच जाए। घर वालों ने बड़ा कहा कि अबू तलहा तेरे जिहाद किए हैं, अब 70 साल की तेरी उम्र है, जान में जान नहीं है, अब क्या करेगा जाके। खुदा की कसम जवाब सुनो, आजकल के बूढ़े कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ूं, रास्ता नजर नहीं आता, वजू सही नहीं रहता, पेशाब के कतरे आ जाते हैं। और अगर अब तू नमाज नहीं पढ़ सकता, अब तू रोजा नहीं रख सकता, अब तुझे कुरान नजर नहीं आता, जवानी में तूने नहीं किया, अब तू कर नहीं सकता, फिर जन्नत भी तेरे बाप की तो नहीं ना।
जवानी यूं बर्बाद कर दी, बुढ़ापे में कुछ बन नहीं पड़ता। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार इसरार करते थे, मैं अब तो अब भी जाऊंगा, मुझे जाना जरूर है, मैं कैसा मुसलमान हूं। कुरान करीम मुझे ललकारता है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे बुलाया है, रब्बुल आलमीन ने मुझे बुलाया है, और दीन पे लोगों ने हमला कर दिया, कुरान पे लोगों ने हमला कर दिया, इस्लाम पे लोगों ने हमला कर दिया। असल बात आखिरी मेरी एक बात समझ लो, हम लोगों में और उन लोगों में फर्क ये था, आज हम मकान को अपना समझते हैं, मकान को अपना समझते हैं, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, मारेंगे भी। मकान अपना है, दुकान अपनी है, जमीन अपनी है, कुरान किसी और का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। इस पर कौन मरे, कौन कहे कुरान मेरा है, दीन मेरा है, ईमान मेरा है, इस्लाम मेरा है, इसके बगैर